بھارت کی آبی جارحیت جاری، دریائے چناب میں ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ بھارت نے سلال ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے۔ پنجاب میں آئندہ 36 گھنٹوں کے دوران اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے چناب اور راوی کے سیلاب نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا۔ دریائے چناب کے اطراف 1169 اور راوی پر 478 دیہات سیلاب کی نظر۔ چناب کا سیلابی ریلا سیالکوٹ، وزیر آباد اور چنیوٹ میں تباہی کے بعد جھنگ میں داخل، 300 سے زائد دیہات کو لپیٹ میں لے لیا۔ سیلابی ریلا ہیڈ محمد والا کی جانب بڑھنے لگا۔ ملتان میں سیلابی صورتحال نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ متاثرین بے سر و سامانی کی حالت میں نقل مکانی پر مجبور۔ مظفر گڑھ کے 104 موضع جات کو خطرہ۔ چناب میں ہیڈ خانکی پر 2,15,000، ہیڈ قادر آباد پر 2,25,000 کیوسک پانی کا بہاؤ۔ دریائے راوی کے سیلابی پانی کی تباہ کاریاں بھی جاری۔ شیخوپورہ کا وسیع علاقہ زیریاب، ہزاروں ایکڑ اراضی اور مکانات دریا برد۔ ساہیوال میں دریائے راوی سے ملحقہ داد بلوچ، کرم بلوچ اور اورنگ آباد کی آبادیوں میں سیلابی پانی داخل۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، پانی کا بہاؤ 76,000 کیوسک ریکارڈ۔ تحصیل شرک پور کے 15 موضع جات کی ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ پنجاب کے بپھرے دریاؤں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ سینکڑوں بستیاں اور آشیانے تباہی کا شکار، لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی، فصلیں بھی سیلاب کی نظر۔ بھارتی آبی جارحیت کے بعد ستلج کے ریلے، راستے میں آئی ہر شے بہا لے گئے۔ قصور میں درجنوں دیہات زیریاب، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,60,000 کیوسک ریکارڈ۔ تلوار پوسٹ کا حفاظتی بند بھی ٹوٹنے کا خدشہ۔ 10 سے زائد دیہات خالی کرا دیے گئے۔ عارف والا کے 45 سے زائد دیہات سیلابی پانی کی زد میں۔ بارات بھی سیلابی پانی میں پھنس گئی۔ ریسکیو ٹیمز کی بروقت کارروائی، دلہا اور باراتی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل۔ الہ آباد، پاک پتن، بورے والا، وہاڑی اور بہاول نگر کے کئی علاقوں میں بھی تباہی۔ دیہات اور فصلیں ڈوب گئیں، مزید کئی دیہات ڈوبنے کا خطرہ۔ چشتیاں میں درجنوں موضع جات کے بند ٹوٹ گئے، سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ بہاول پور اور احمد پور شرقیہ میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں اور فصلیں زیریاب۔ 1 ستمبر سے کھلنے والے اسکول بھی تاحکم ثانی بند رکھنے کا اعلان۔ دریائے سندھ میں بھی شدید سیلاب کا خطرہ۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب کے سیلابی ریلے پیر کو کوٹ مٹھن سے گزریں گے۔ منگل اور بدھ کو دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ 3 سے 4 ستمبر کو 9 لاکھ کیوسک تک سیلابی ریلے پنجند ہیڈ ورک سے گزریں گے۔ گڈو بیراج پر 5 سے 6 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک بہاؤ متوقع۔ کچے کا پورا علاقہ ڈوبنے کا خدشہ۔ ادھر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ گھوٹکی میں کچے کے 100 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ قادر پور کے شینک بند پر پانی کا دباؤ برقرار۔ کچے میں خوف و ہراس۔ کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 2,62,000 کیوسک ریکارڈ۔ چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک۔ چینی صدر شی جن پنگ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ روسی صدر پیوٹن، ترک صدر طیب اردوان اور دیگر رہنما بھی اجلاس میں موجود۔ دوسری جانب تیانجن میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات۔ فلسطین کی بگڑتی صورتحال، اہم علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا پاک ترک تعلقات میں بڑھتی ہوئی رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ ترک صدر کا پاکستان میں حالیہ مانسون بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس۔ قیمتی جانی اور مالی نقصانات پر پاکستانی عوام سے یکجہتی کا بھی اظہار۔ کہا، مشکل کی گھڑی میں ترک حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم کی چینی صدر اور وزیر اعظم سمیت عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ ہم تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کی تیانجن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور طلباء سے خطاب۔ کہا، پاکستان پہلی مسلم ریاست ہے جس نے چین کو تسلیم کیا۔ پاکستان اور چین نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاک چین تعلقات میں عدم اعتماد پیدا کرنے کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ پاکستان اور چین مل کر ترقی کی منازل طے کریں گے۔ وزیر اعظم نے تیانجن یونیورسٹی میں نیشنل ارتھ کوئک سیمولیشن سینٹر کا دورہ کیا اور چین کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی تعریف کی۔ وزیر اعظم کا پاک چین شراکت داری کو مزید وسعت دینے کا عزم۔
ग्लेशियर पिघलने और मौसमियाती तब्दीली से आफात का सामना है। वज़ीर आज़म सैलाबी सूरत-ए-हाल से लम्हा लम्हा की आगाही ले रहे हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैलाब की सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मुकम्मल मुआवनत कर रही है। शदीद बारिशों और सैलाब से पाकिस्तान को नुकसानात का सामना है। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने कहा, आइंदा 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। हम बारिशों और सैलाब के हवाले से अलर्ट जारी कर रहे हैं। मुल्क के तमाम दरियाओं की मॉनिटरिंग जारी है। सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सखर बिराज का दौरा, सैलाबी सूरत-ए-हाल और एमरजेंसी इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध को पानी की सूरत-ए-हाल और बंदों की पोजीशन के हवाले से ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सैलाब से निपटने की तैयारियां मुकम्मल हैं। इंसानी जानें, मवेशी और बंद बचाना तरजीह है। इस वक्त रावी और त्रीमू पर पानी बढ़ा हुआ है। पाक बहरिया ने बहुत मदद की है। पाक फौज और DG रेंजर से भी राब्ते में है। PDMA, पाक बहरिया और पाक फौज की 192 कश्तियाँ कच्चे के इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। दरियाए सिंध पर राइट बैंक पर 6 हसास मकामात हैं। KK बंद का हिस्सा ज़्यादा खतरनाक है। लेफ्ट बैंक पर शाहीन बंद हसास मकाम है। 8 या 9 लाख क्यूसेक पानी आ गया तो शाहीन बंद नहीं बच पाएगा, लेकिन इस बंद को हर हाल में बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह होगी। भारत ने सलाल डैम से पानी के अखराज बारे आगाह नहीं किया। सैलाबी सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। तमाम तर इंतजामात के साथ सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमट रहे हैं। DG PDMA पंजाब इरफान अली काठिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब के दरियाओं में तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है। जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई। 2200 देहात और 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके। अगले 24 घंटों में मुल्तान को ख़तरा हो सकता है। कल दोपहर को 7 लाख क्यूसेक का रैला हेड तरीमू से गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसेक का रैला मुतवक्के है। शेर शाह ब्रिज पर से भी रैला गुजरेगा। 2 सितंबर को रावी का पानी चनाब से मिलेगा। दरिया सतलुज में कसूर के मकाम पर पानी में कमी आ रही है। हेड सुलेमानकी पर पानी बढ़ रहा है। शाम तक बुलंद तरीन सतह पर होगा। हेड इस्लाम पर 1,35,000 का रैला गुजरेगा। आशियाने उजड़ गए, जमा पूंजी और माल मवेशी भी बह गए। दूर दराज इलाकों के सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दाद रसी के लिए ताहाल कोई हुकूमती नुमाइंदा पहुंचा, न किसी और जरिए से इमदाद मिली। जलालपुर, भटियां, अलीपुर, चट्ठा और दीगर इलाकों में मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। शिकवा किया कि 5 रोज बाद भी वो इमदाद के मुंतजर हैं। मसाजिद में सिर्फ ऐलानात हुए, इंतजामिया ने पूछा तक नहीं। बच्चे भूखे और खुले आसमान तले बैठे हैं। पीने को पानी मुयस्सर है, न खाने पीने की अशिया मौजूद। जानवरों के लिए चारा भी खत्म हो गया। हुकूमत फौरी मदद करे। एक तरफ सैलाब तो दूसरी तरफ मूसलाधार बारिशों की तबाही जारी। सैलाब ज़दा पंजाब में मूसलाधार बारिशों से पानी की सतह मजीद बुलंद। बेघर अफराद मुश्किलात का शिकार। छतें गिरने के वाक़यात में 11 अफराद जाँ बहक। लाहौर में छतें गिरने से 4 अफराद की जान गई। ननकाना साहब में छत गिरने से माँ 2 बच्चों समेत जाँ बहक। कंगनपुर में 2 मकानात की छतें गिरने से 2 अफराद जानों से हाथ धो बैठे। कसूर के गांव बाकिरके में बारिश के बायस पूरा घर ज़मीं बोस। मलबे तले दब कर 7 साला बच्ची जाँ बहक। बच्चों समेत 14 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीराबाद के इलाके सोहदरा में सैलाब ने बदकिस्मत माँ की गोद उजाड़ दी। बरवक्त तिब्बी इमदाद न मिलने पर 3 नौमौलूद दम तोड़ गए। सैलाब के बायस रास्ते बंद होने से हामिला खातून बर वक्त अस्पताल ना पहुंच सकी। खातून ने रास्ते में 3 बच्चों को जन्म दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। दरिया रावी के सैलाबी पानी के बाद बरसाती पानी भी सड़कों पर जमा। फैसलाबाद, चिन्योट, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब और नारोवाल में बारिशों से सूरत हाल इंतहाई खराब। जहलुम के नदी नाले बिफर गए। कई मकामात पर पानी आबादी में दाखिल। सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, मुल्तान में भी तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में तेज़ बारिश। पेशावर के बडनी नाले में तूफ़ानी सैलाब का खतरा। DI खान में छत गिरने से माँ 2 कमसिन बेटों समेत जाँ बहक। घर और दुकानें सैलाबी रैले में बह गईं। टांक और खैबर में भी सैलाबी सूरत हाल। पाक अफगान शाहराह बंद। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। नीलम, मुजफ्फराबाद, बाग, श्रद्धा हवेली और कोटली में अगले 12 से 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के। शहरी और नशेबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
पाक फौज के दस्ते सैलाब ज़दा इलाकों में दिन रात मसरूफ। कसूर, झंग, फैसलाबाद, चिन्योट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन सैलाब की हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया ने तांतलियावाला के रावी पतन पर फंसे 7 अफराद और मवेशियों को रेस्क्यू कर लिया। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और मेडिकल कैंप्स भी फाल। उधर सवात और गिरदोनवाह के सैलाब ज़दा इलाकों में भी पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। मकान बाग और मुल्लाबाद में राशन और खाने पीने की अशिया तकसीम की। मुतासरीन का भरपूर इक़दामात पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब की सबसे बड़ी कवरेज। सैलाबी रैलों की पल पल बदलती सूरत हाल की बर वक्त और हमा वक्त रिपोर्टिंग। 92 न्यूज़ के नुमाइंदगान और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी टीम हर मुतासरा इलाके, दह, बस्ती और कस्बे तक पहुँच गई। इंतज़ामिया के रेस्क्यू और रिलीफ इक़दामात और इंतज़ामात से नाजरीन को मुकम्मल आगाही देने में मसरूफ़। 92 न्यूज़ की टीमें वहाँ तक भी पहुँच गईं जहाँ रेस्क्यू और इमदादी टीमें ना पहुँची। पानी में घिरे लोगों को दरपेश मसाइल उजागर करने में पेश। गजा में इसराइली फौज के वहशाना हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 88 फलस्तीनी शहीद, 421 जख्मी हो गए। शोहदा में इमदाद के मुंतज़िर 30 फलस्तीनी भी शामिल। कहत और गजाई किल्लत से मजीद 7 फलस्तीनी जाँ बहक। भूख से अब तक 339 फलस्तीनी मौत के मुंह में, जिनमें 124 बच्चे भी शामिल। गजा में शोहदा की तादाद 63,371 हो गई। 1,59,935 जख्मी हो चुके। इसराइली फौज की अल-कस्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। गजा सिटी को खतरनाक जंगी जोन करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 10 लाख फलस्तीनियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी। इटली, जर्मनी और स्पेन में एहतजाज। इटली में मुजाहिरीन का वेनिस फिल्म फेस्टिवल की तरफ मार्च। इसराइल में भी सैकड़ों अफराद का मुजाहरा। गजा जंग खत्म करने का मुतालबा। दूसरी जानिब गजा के लिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल फ्लोटेला बार्सिलोना से रवानगी के लिए तैयार। छोटी कश्तियों पर मुश्तमिल काफिले में समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत मुतअद्दिद कारकुन मौजूद। समाजी कारकुनान और इमदादी सामान पर मुश्तमिल कश्तियों के गजा के सफ़र का मकसद इमदादी सामान पहुँचाने के साथ साथ गजा में जारी नस्ल कुशी को रोकना है। काफिला सितंबर के वस्त में गजा पहुँचेगा।